Bismillahirrahmanirrahim. Today we have our sixth lecture of mathematics, and we are doing chapter number 1 about functions. And today the topic of our lecture is limit of the function. And today, inshallah, we will cover different topics related to this limit of the function. The first one is I will explain you the meaning of phrase x approaches to 0. Then we have another phrase that is x approaches to a, and this will also I will explain you the meaning of the phrase x approaches to a. Then concept of limit of the function, then limit of the function, and then in the end of my lecture I will explain you the theorems on limit of the function. Now we start our lecture, in which first I will tell you the meaning of the phrase x approaches to 0. Suppose we have different values. Suppose we have different values of x. Suppose a variable x has different series of values as 1, 1 by 2, 1 by 4, 1 by 8, and 1 by 16, and going to some more values. This is a series of different values, and if I will write this series of different values like this, 1 by 2 power 1, here I can write 2 power 0, 1 divided by 2 power 1, 1 divided by 2 power 2, then 1 divided by 2 power 3, then 1 divided by 2 power 4, and up to so on. So the both series of values represents the same values. Means here we have 1, and 1 divided by 2 power 0 is also 1. Then 1 by 2, 1 divided by 2. 1 by 4, 1 divided by 2 square, which is also equals to 1 by 4. 1 by 8 and 1 by 2 power 3. And when you multiply 2 3 times, you get 8. So 1 by 8 means 1 divided by 2, 3. So both have same meanings. 1 divided by 16, 1 divided by 2 power 4, up to so on. We represent these values 0, 1, 2, 3, 4, 5. We represent these values by this n. And we have noticed that x is becoming smaller and smaller as n increase. You can see these are the values of x. 1 by 1, then 1 by 2. This is 1, then 1 by 2. 1 by 4 is smaller than 1 by 2, 1 by 3, because the denominator when increase. In denominator, when you have a bigger number, means your answer is become smaller one. So when we increase the values of n, 0, 1, 2, 3, 4, up to n, these are the different values of n. And with the increase of these values of n, x, the values of x become smaller, and it can be made as small as we please by taking n sufficiently large.
This unending decrease of x is symbolically written as, we can write as, when x approaches to 0, when we write x with this arrow towards this 0, we read it x approaches to 0, or x tends to 0, or x tends to 0. In simple words, we means to say when n the values of n increases, the values of x decreases, and means x approaches, and we can say by according to this situation, we can say x approaches to 0, x becomes smaller and smaller and smaller, and at some at the series of these values, one point must comes in this series at which the value of x becomes 0, not equals to 0, means it approaches to 0. x approaches to 0 means कि x की वैल्यू जो है वो 0 नहीं हो रही है, 0 के करीब करीब है, 0 को अप्रोच करने की कोशिश कर रही है, लेकिन 0 नहीं हो रही है. यहाँ पे एक नोटेबल पॉइंट ये है हमारे पास कि x इक्वल्स टू 0 एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन x अप्रोचेस टू 0 इट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट. x equals to 0 means x is at the point 0, but when we say x approaches to 0, approach यानी आप उस पॉइंट को अप्रोच जरूर कर रहे हैं, लेकिन आप उस पॉइंट पे है नहीं है. आप उस पॉइंट के, जैसे कि एक मैंने एक लाइन ड्रॉ की है और ये मेरा पॉइंट 0 है, अगर आप इस तरफ से आते हैं तो आप नियरर टू 0 हैं, बल्कि बहुत क्लोज टू दिस पॉइंट एट 0 है. लेकिन यहाँ और दूसरी तरफ यहाँ से अगर अप्रोच करते हैं तो यहाँ से भी आप बहुत करीब हैं 0 के, लेकिन 0 नहीं है. इन दोनों केसेस को हम कहते हैं कि in such cases x approaches to 0 but not at the point of 0. ठीक है, तो इस तरह से जब हमारे पास x की इन डिफरेंट वैल्यूज, दीज आर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, 1, 1/2, 1/4, 1/8, ये डिफरेंट वैल्यूज है हमारे पास x की. और जब हम इन वैल्यूज को क्या कर रहे हैं कि जब n की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो ये डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x जो हैं ये क्या कर रही है, n की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और इन डिफरेंट x की वैल्यूज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. और डिक्रीज होते 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 एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे ये वैल्यूज जो हैं वो 0 को अप्रोच कर जाएंगी, 0 नहीं होंगी, 0 के करीब तरीन हो जाएंगी. तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं x approaches to 0. Now we have one more concept in which we say x approaches to 0, infinity, approaches to infinity. यानी ये फिनोमेना कब होल्ड करेगा, ये फिनोमेना तब होल्ड करेगा जब हमारे पास इस टाइप की x की वैल्यूज हो. हम एक एज्यूम करते हैं, लेट वी एज्यूम assumes in succession a series of values, means x has different values 1, 10, 100, then 1000, then 10,000, up to so on, and we can write these values as 1, 10, then 10 power 2, 10 power 3, 10 power 4, up to so on. इसमें क्या हो रहा है, इस वैल्यूज में और पिछली वाली जो x की वैल्यूज थी उसमें डिफरेंस था, उसमें आपके पास फ्रैक्शनल फॉर्म में वैल्यूज थी, और जब फ्रैक्शनल फॉर्म में डिनोमिनेटर में आपका n इंक्रीज कर रहा था तो जो x की वैल्यूज थी जो कि
फ्रैक्शनल थी वो क्या कर रहा था, n के इंक्रीज करने से वो वाली वैल्यूज डिक्रीज कर रही थी। लेकिन इस केस में क्या है, आपके पास इस तरह की वैल्यूज हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म नहीं है, सिंपल आपके पास नंबर्स हैं। इसमें क्या हो रहा है कि जब आपकी 1, 10, 100, 1000, 10,000 अप टू सो ऑन, क्या हो रहा है, आपका n भी इंक्रीज कर रहा है और आपका x भी इंक्रीज कर रहा है। ये different values of x हैं, 1, 10, 100, 1000, 10,000. These are the different values of x, and 1, 1, 2, 3, 4 up to so on. These are the different values of n. So with the increase of values of n, x is also increases. So in such type of case, we can say that with the increase, when n increase, with n increase, x also increase. तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, हम ये कह सकते हैं कि it is clear that x is becoming larger and larger as n increases and can be made as large as we please by taking n sufficiently large. This unending increase of x is symbolically written as x approaches to infinity. यानी बढ़ते 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 इतनी वैल्यू बढ़ जाएगी कि x जो है, यानी यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यू लिखते 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 कहते हैं ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो जब लिखते 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 एक पॉइंट ऐसा आएगा कि x की वैल्यू बढ़ते बढ़ते अप्रोच कर जाएगी इन्फिनिटी की, यानी कि अपनी हाईएस्ट वैल्यू पे जो भी होगी वो उस तक अप्रोच कर जाएगी। तो हम उस वैल्यू को हम कह सकते हैं कि वो वैल्यू हमारे पास क्या है, लेट से a है या जो भी है, तो हम उसको कह देंगे कि वो वैल्यू जो है वो अप्रोच कर रही है अपनी इन्फिनिटी को। तो ये हो गया हमारे दो फ्रेजेस इन विच वी से दैट x approaches to 0 and then x approaches to infinity. अब एक और फ्रेज है हमारे पास कि जब हम कहते हैं कि when x approaches to certain value, say a, x approaches to a, and a is some value. Symbolically, it is written that if we can write this, x approaches to a. The x approaches to a. This is the representation in simple. It's a simple sentence, but when symbolically in mathematical language, when we write this thing, we write it x approaches to a, which means that x is sufficiently close but different from the number a. Means x इसके बहुत करीब तो है, like मैं इसको यूं ड्रॉ करती हूँ, यहाँ पे हमारे पास different values of x पड़े हुए हैं, ठीक है, और ये एक पॉइंट है a का, ये पॉइंट हमारा a है। x इसको अप्रोच करता है इस तरफ से और फिर x अप्रोच करता है इस पॉइंट को इस तरफ से भी। ये x जो है a के बहुत करीब करीब तो आ रहा है, लेकिन ये पॉइंट a पे नहीं है, ठीक है। तो जब हम इस पॉइंट की तरफ आएंगे, x की डिफरेंट वैल्यूज को लेते 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 हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से आएंगे, तो हम क्या कहेंगे, जब हम लेफ्ट साइड से आते हैं तो हम कहते हैं x माइनस a, यानी सारी वैल्यूज x की हैं एक्सेप्ट माइनस a, यानी यहाँ इसके बिल्कुल करीब, a बीच में शामिल नहीं है। और जब हम इस तरफ से आएंगे तो हम लिखेंगे x प्लस a। राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड से है तो x माइनस a, और जब हम दूसरी तरफ से आए लेफ्ट राइट हैंड साइड से तो हम लिख देंगे x प्लस a। और ऐसा भी नहीं है कि x माइनस a जो है वो हमारे पास x माइनस a डज नॉट इक्वल्स टू 0। x माइनस यानी x की वैल्यूज में से a निकाल दो तो वो 0 नहीं आता, कोई रिजल्ट आता है, एक माइनर सा डिफरेंस मौजूद है इन दोनों वैल्यूज के बीच में। तो ये हमारे पास आ जाता है एक और कॉन्सेप्ट इन विच वी हैव डिस्कस when x approaches to certain value and the value is a.
Now definition of a limit. When we write limit x approaches to a, f of x is equals to a. Actually limit होती क्या है? Limit is a value of your function basically. In simple and clear words, limit is a value of your function. Now see the definition. We write limit x approaches to a means x approaches to a. X approaches to certain value, a certain point when f of x gets the value this L, and L is the limit of this function. And say the limit of f of x as x approaches to a equals to L. When limit x approaches to a of f of x as x approaches to a and the value is equals to L. If we can make the value f of x arbitrary close to L, as close to L as we like, by taking x to be sufficiently close to on either side of a but not equals to a. This is what I have told you कि आप चाहे लेफ्ट साइड से आओ चाहे राइट साइड से आओ, आप उसके क्लोज तो हो रहे हो लेकिन आप वो वैल्यू ले नहीं रहे. अच्छा, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है तो इट डजेंट मैटर. मैं अभी एक्सरसाइज स्टार्ट करती हूँ, आप उसमें इसके पहले रूल्स कर लेते हैं एंड देन वी स्टार्ट और exercise. Now some rules which we have to obey when we are doing limit of the function. So we have a theorem 1. Theorem 1. Kindly beta please open your books and these theorems are at page number 17. Page number 17 of your book. The first theorem is the limit of the sum of two functions is equal to the sum of their limits. Okay, so what is in this theorem? When limit x approaches to a, f of x plus g of x means जब हम कोई भी दो functions को क्या करते हैं, ऐड करते हैं. जब दो functions को हम क्या करते हैं, ऐड करें. f of x एक function है, g of x और function है. तो जब हम उस पर लिमिट अप्लाई करेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू a, तो क्या होगा, हम इसको लिख सकते हैं दोनों फंक्शंस पे सेपरेटली ये लिमिट अप्लाई हो सकती है. लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू a g of x. ठीक है. और अगर हम इनको दोनों, और अब आप पे है कि जैसे इस थ्योरम की शुरू की स्टेटमेंट में है कि जब आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x आ जाए तो उसकी लिमिट आप कंसिडर कर लो L, और जब लिमिट x अप्रोचेस टू a g of x के लिए आ जाए तो तब आप इसको कंसिडर कर लो M. ये आपके इस थ्योरम की जो कि पेज नंबर 17 पे आप स्टेटमेंट देख लो, उसमें लिखा हुआ है कि let f and g be the two functions for which limit x approaches to a f of x is equals to L and limit x approaches to a g of x is equals to M. तो उस केस में ये तो स्टेटमेंट आपको दी हुई है, आपने क्या किया, फर्स्ट रूल ये होता है कि अगर आपको ऐसा केस मिल जाए जिसमें आप ये कहो कि f of x और g of x दो फंक्शन है और उसके ऊपर आपको लिमिट अप्लाई करनी पड़ेगी, तो क्या होगा, आप उन दोनों पे यू कैन अप्लाई द लिमिट सेपरेटली ऑन बोथ फंक्शंस. ठीक है, इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं. इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले की कि व्हेन एडिशन ऑफ टू फंक्शन. अच्छा, इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है कि अगर हमारे पास f of x एक फंक्शन है और उसमें हमारे पास क्या है कि f of x f of x नहीं, हमारे पास इसका है कि अगर आपके पास क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 है और फंक्शन है आपके पास x plus 5. तो एक्चुअली ये आपको लग रहा होगा कि इट्स अ फैक्टर x plus 5. No, these are the two functions. Here we have x is f of x and 5 is g of x. This is our f of x
and this is all g of x, and basically it's a combination of two functions. Here we are adding two different functions. It's a algebraic function and it's a constant function. Okay, according to our rule we have to apply this limit on both functions separately. So limit x approaches to 1x plus limit x approaches to 1 5. ठीक है, तो जब आपने क्या करना होता है, जब आप लिमिट अप्लाई करते हो तो इसका मतलब है इस x में आपने ये पॉइंट पुट कर देना है, तो ये आ जाएगा 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगी, तो कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन के ऊपर लिमिट का कोई असर नहीं होता, कांस्टेंट फंक्शन एज इट इज ही रहता है जो कि वो है, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। तो 1 + 5 = 6। आपने ये पॉइंट उठा के इसके इस फंक्शन के अंदर पुट कर दिया, आपने जब उस फंक्शन के अंदर पुट कर दिया तो आपके पास उसकी लिमिट आ गई है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, इट्स योर फर्स्ट रूल इन विच यू आर एडिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस। इसी तरह से हमारे पास क्या है, सब्ट्रैक्शन का रूल है, ठीक है। इसका सेकंड थ्योरम हमारे पास क्या आता है, थ्योरम 2 क्या है हमारे पास, इन विच वी हैव two functions f of x and g of x, f of x and g of x, and its difference is two function is equal to the difference of their limits. Okay, now first function limit x approaches to a f of x minus g of x, बिल्कुल जिस तरह अभी एडिशन का किया उसी तरह ये भी होगा, आप इस लिमिट को सेपरेटली इन दोनों फंक्शन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू a g of x। ओके, तो यहाँ पे जिस तरह की जो मेन आपका जो स्टेटमेंट थी उसमें क्या था, f of x क्या आ जाएगा l, और g of x लिमिट x अप्रोचेस टू a g of x किसके इक्वल होगा m, तो l माइनस x m आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल यूज करें, यही ऊपर वाली एग्जांपल अगर आप उठा लें और आप लिखें लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x minus 5, same calculation, just what's the difference, we have just minus sign instead of this plus sign, so limit x approaches to 1 x minus limit x approaches to 1 5, वही बात आपने ये पॉइंट उठा के इस x में पुट करना है, तो आ जाएगा 1 minus 5 minus 4 is your answer. अच्छा, फिर आ जाएगा जी आपके पास, आप अगले उसमें आ जाएं, नेक्स्ट आपके पास थ्योरम 3 आ जाएगा, थ्योरम अच्छा जी, थ्योरम 3, theorem 3 in which we if k is any real number, if k is any real number, then if we have a limit in which x, the limit is in the limit x approaches to a, and we have a number k multiplied by this function x, तो क्या होगा, अगर आपके पास कोई भी एक रियल नंबर आ गया और आपके फंक्शन के साथ वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपने जब उस पर लिमिट अप्लाई करनी है तो सिंपली आपका ये जो कांस्टेंट नंबर, एक्चुअली इट्स अ कांस्टेंट नंबर, ये क्या करेगा, पीछे चला जाएगा और लिमिट अप्लाई पहले हो जाएगी। इसकी एग्जांपल देखते हैं, इस रूल की एक एग्जांपल देख लो। एग्जांपल है हमारे पास लिमिट x approaches to 2 and the function is 3x, 3x, x एक लीनियर फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है सिंपल, तो हम क्या करेंगे, इस 3 को उठा के लिमिट से बाहर ले जाओ
और लिमिट किस पे अप्लाई होगी, सिंपली इसके ऊपर, x के ऊपर अप्लाई होगी। तो हमारे पास क्या करेंगे, लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं, 3 आ गया, x की जगह ये पॉइंट पुट कर दिया 2, तो हमारे पास 6 इसका आंसर आ गया, सिंपल। फिर हमारे पास आ जाता है थ्योरम 4। In fourth theorem, this theorem is about the product of the function is equal to the product of their limits. यानी अगर आपके पास दो फंक्शंस हैं, यानी कि अगर लिमिट x अप्रोचेस टू a है और f of x मल्टीप्लाइड बाय g of x, तो क्या होगा हमारे पास, तब हमारे पास तब भी यही बात होगी कि हम इस पे सेपरेटली लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x, then limit x approaches to a g of x, सिंपल, बीच में सिर्फ प्रोडक्ट का साइन आ जाएगा। और हमारी स्टेटमेंट में, थ्योरम्स की स्टेटमेंट में था कि जब ये केस होता है तो इसकी लिमिट क्या है m, और जब ये वाला केस होगा तो इसकी लिमिट होगी l। तो ml आपके पास क्या आ जाता है, आपका रिजल्ट आ जाता है। तो इसकी एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल है कि अगर आपके पास क्या है, एग्जाम्पल, अगर आपके पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 2x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 4, तो ये बेसिकली आपके पास दो फंक्शन आ गए, ये f of x हो गया और ये आपका g of x हो गया। so when we apply the limit x approaches to 1 2x and then limit x approaches to 1 x plus 4, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज, ये 2, अब ये क्या है 2x, ये अभी जो आपने पहले किया था जिसमें एक k मल्टीप्लाई हो रहा था फंक्शन के, इन योर थ्योरम नंबर 3, उसमें क्या था, k मल्टीप्लाई हो रहा था और हमने क्या किया था, उस k को उठा के लिमिट से पहले ले गए थे, वही रूल यहीं पे अप्लाई करेंगे, 2 इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x। फिर अगर आप ये देखिए तो आपका जो पहला रूल था जिसमें आपने दोनों फंक्शन को f of x और g of x दोनों को क्या किया था, ऐड किया था, तो ये भी एक्चुअली क्या है, ये f of x है और ये मतलब फर्दर उसमें आप अपने रूल 4 में आप जब उसको सेपरेट कर रहे हो तो फर्दर आपका वो रूल भी अप्लाई हो सकता है। तो आप क्या करोगे, इसको ऐसे करके आप यहाँ पे फर्दर इस पे अप्लाई कर दो, क्या कर दोगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 1 4, ठीक है, जिससे हमने अपना पहला केस किया था। तो 2 यहीं पे, x की जगह क्या पॉइंट आ जाएगा 1, और फिर इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हम इसमें पुट करेंगे ये लिमिट का पॉइंट, तो x की जगह 1 प्लस 4, तो ये हमारे पास आ गया 2 इंटू 1 प्लस 4 5, 2 5 10, 10 हमारा आंसर है, ठीक है। अब हमारे पास आखिरी थ्योरम आ गया, थ्योरम नंबर 5, थ्योरम 5। This is about the quotient rule. The limit of the quotient of the function is equal to the quotient of the limit provided the limit of the denominator is non-zero. Now, statement of the theorem is limit x approaches to a. Here we have f of x and divided by g of x. ये हमारे पास आ गया हमारा फंक्शन। इसी तरह जैसे हम करते रहे, हम इस पे सेपरेटली लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट x approaches to a f of x divided by limit x approaches to a g of x, and we know that limit x approaches to a f of x is equals to m, and limit x approaches to a g of x is equals to n. So m by l is our answer. But in such case, when we are using the quotient rule, we must keep one thing in mind, that the function which is at the denominator, it should not be equals to 0. Not equals to 0 means it's sorry, the function f is L and the function this is G. And in this case L not equals to 0.
L not equals to 0. ओके, यहाँ पे मैंने एक चेंज कर दिया। हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो आपकी बुक में है वो है एफ ऑफ एक्स फंक्शन एल के बराबर है, और जी ऑफ एक्स जो है वो फंक्शन एम के बराबर है। तो जो लिमिट है उसकी वैल्यू क्या है, एल है, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एल है और जी ऑफ एक्स की वैल्यू एम है। मैंने इसको थोड़ा सा आपस में चेंज कर दिया, लेकिन बात वही है कि आपने क्या करना है, जो इसका इसकी लिमिट होगी वो यहाँ लिखनी है और इसकी लिमिट यहाँ पे। और जब आप क्वोशिएंट रूल मैं यहाँ लिख देती हूँ ऐसे कि लिमिट मैं यहाँ लिख भी देती हूँ कि इस केस में हम क्या ले रहे हैं, लिमिट। अपनी बुक को अगर कंसल्ट किया तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है, एक्स अप्रोचेस टू ए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, मैं एम ले रही हूँ, और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, जी ऑफ एक्स में क्या ले रही हूँ, एल ले रही हूँ। ठीक है, आपकी बुक में ये थोड़ा सा आपस में चेंज है, लेकिन मैंने इसको इस तरह से कर दिया। ठीक है, फर्क कुछ भी नहीं है, हमने सिर्फ एक नंबर बताना है, एक आर्बिटरी से एक एज्यूम्ड वैल्यू है एम और एल, तो इसलिए हमने वो शो करनी है। एनी ये हमारे पास क्या आ गए, डिफरेंट रूल्स आ गए हैं हमारे इसके फंक्शंस के, और ये थ्योरम्स हैं जो हम आगे अपनी एक्सरसाइज पे भी अप्लाई करेंगे। और अभी हम करते हैं एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 1.3 जो है उसका पहला क्वेश्चन जो है वो इन सब रूल्स के साथ बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम एक स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज, देखते हैं थोड़ी कि उसमें क्या हम कर सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.3, and the question number 1 is evaluate each limit by using theorems of limit. पहला क्वेश्चन है लिमिट x approaches to a 2x plus 4, तो क्या करेंगे, वही रूल अप्लाई करना है। ये हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शन आ गया, ये एफ ऑफ एक्स है, ये हमारा जी ऑफ एक्स है। हमें पता है कि व्हेन वी हैव टू फंक्शन एंड बोथ फंक्शन व्हेन, और जब एडिशन का रूल लग रहा है तो हमने क्या करना है, दोनों फंक्शंस पे सेपरेटली लिमिट अप्लाई कर देनी है। हम करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू a 2x प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू a g of x, sorry not g of x, here we have g of x equals to 4, तो हम यहाँ लिख देंगे लिमिट x अप्रोचेस टू a 4। तो यहाँ पे अब वही आ गया कि हमारे पास k आ जाता है, तो k को हम उठा के लिमिट से पहले ले जाएंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू a x प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू a 4। अब इस पे लिमिट अप्लाई करते जाओ तो 2 x की जगह क्या आ जाएगा a प्लस, कांस्टेंट फंक्शन है तो इस पे तो कोई असर ही नहीं, तो ये 4, तो आंसर है हमारा 2a प्लस 4 इज और आंसर। ठीक है, इस तरह डिफरेंट है। मेरे पास इन चीज़ों के थोड़े से सॉल्यूशंस हैं, आप देखना चाहो तो ये हमारे पास इनके ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट मैंने ये सॉल्व किया है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 2x प्लस 4, एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, हमने वही था कि ये एडिशन ऑफ टू फंक्शन आ गया, हमने सेपरेटली दोनों पे लिमिट अप्लाई कर दी, और फिर 2x था तो 2 लिमिट से पहले आ गया और x अंदर आ गया, 4 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 10। सेकेंड पार्ट है आपके क्वेश्चन का, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। अब ये कॉम्बिनेशन ऑफ 3 फंक्शंस आ गया, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एक्स एंड एच ऑफ एक्स। तो आपने क्या किया, कुछ भी नहीं, आपने डिफरेंटली इन तीनों के ऊपर लिमिट अप्लाई कर देनी है। जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे
जैसे मैं इधर करती हूँ, यहाँ पे हमारे पास आ गया, यहाँ पे मैंने a लिखा था, a आर्बिटरी नंबर है इसलिए, लेकिन अगर आप इस a को क्या कर दें, रिप्लेस कर दें, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 2x + 4, तो ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन बन जाएगा। जहां जहां a है वहां 3 पुट करें, जैसे कि आंसर है इसमें मैं a की जगह 3 पुट कर दूं +4, तो आंसर हमारा 10 ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास इसके डिफरेंट, अब इसके सेकंड पार्ट की बात हो रही है, तो सेकंड पार्ट में क्या है, 3 फंक्शन है। सेकंड पार्ट है हमारे पास लिमिट लिमिट x अप्रोचेस टू 1, तो 3x² प्लस -2x + 4, तो कोई भी फर्क नहीं, सिर्फ ये हमारे पास f(x) हो गया, ये हमारे पास g(x) हो गया, और एक तीसरा फंक्शन उसका नाम h(x) कर दें। तो जब हम इस पे क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, 3x² माइनस क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 2x हो गया, एंड प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 1 4 हो गया। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, ये 3 पीछे आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1x² -2 पीछे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1x, and then simply limit x approaches to 1 4। अब क्या हो गया, 3 into 1² -2 into 1 + 4, and the answer is 3 - 2 + 4, 7 - 4 5, so 5 is your answer। तो यही चीज है, आपके पास ये सॉल्यूशंस हैं, इन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट किया हुआ है, आप लिमिट लगा के इसको प्रॉपर तरीके से भी कर सकते हो, आंसर वही 5 आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, अंडर रूट है, अंडर रूट के अंदर आपके पास x² + x + 4 ये आपके पास आ रहा है। आपने क्या किया कि लिमिट जहां जहां x है वहां पे उसकी लिमिट पुट कर दी, 3² + 3 + 4, और ये आपके पास इस तरह से सबके आंसर आते रहे। ये लास्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट, इसको जरा देख ले, लिमिट x अप्रोचेस टू 2x √x³ + 1 -√x² + 5, ये दो फंक्शन थे अंडर रूट के आपने, और बीच में क्या है, माइनस साइन से हुआ, ये f(x) हो गया और ये आपका g(x) हो गया। आपने क्या किया, लिमिट पहले f(x), देन यू हैव अप्लाइड द लिमिट ऑन g(x), and when you apply limit at f(x), what you get, instead of this x you will write 2 + 1, and same here 2² + 5, and when you calculate 2³ means 8 + 1, which is equals to 9, and then 4 + 5, it's also equals to 9, and the answer is 0. So these are the 6 different parts of your question number 1.